while loop and when we can use the do while loop in our project? Uh, in do while loop we use in banking set scenarios. In which scenario we can use? Banking. No, in banking domain, where we can use when it will be required. For the there is multiple conditions when we check the transaction successful or we can continue or there are multiple conditions. What are those multiple Want conditions? we want to proceed or exit or the uh, for processing a withdrawal or the deposit or withdraw. Yes. Okay. Okay. So let me recap those things again. Simple difference between the while loop and do while loop first. Okay. I already explained the difference between for loop, for each loop, and while loop. So similar while loop and for loop also same, but there is some scenarios, right? There are some scenarios we can use that. So now let me explain the simple thing again. While loop and do while loop. Okay, when we can use the while loop and when we can use the do while loop. See here, this is the simple example. Suppose you want to check some condition and you have to perform the repeated transaction, means repeated execution or repeated execution for particular statement. So for example, you want to add the amount until the balance is less than 50,000 rupees. Then we have to add the amount inside this balance. Okay, so for that condition we can use the our while loop. But when we can use the do while loop, the same thing will not happen in the do while loop, because while loop is check, initially it's validating the condition, it's validate the condition, then executing the our block. But in the while loop, in the do while loop, there is some difference, because if we want to provide some instruction before executing the our block, okay, or before checking the condition, validating the condition. So for example, you have something like options. If you want to enter your pin, if you want to withdraw your amount, okay. So in that case, this is the example. In do we are just taking some information, means providing some information to the customer. क्या कर रहे हैं हम? कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. प्रोसेसिंग विड्रॉल, अगर हम विड्रॉल का प्रोसेस कर रहे हैं तो विड्रॉल सक्सेसफुल, परफॉर्म अनदर ट्रांजेक्शन. तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तुम्हें करना है नहीं करना है, तो उसके चॉइस में हम क्या कर रहे हैं, उसको चॉइस दे रहे, करना है करना ही करना है. मीन्स हम पहले पूछ रहे, तुम्हारा एग्जीक्यूशन होने से पहले प्रोसेस विड्रॉल ट्रांजेक्शन तुम्हारा कर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले हम उनको पूछ रहे हैं यस और नो, राइट. यस और नो मीन्स चॉइस दे रहे हैं. ओके, लाइक एपीक्यू और कोई भी है, हम एक चॉइस दे रहे हैं, तो तुम्हें सेलेक्ट करना है. अगर तुम चॉइस बोलते हो यस, तो क्या होगा, कंडीशन तुम्हारी जो चॉइस है उस चॉइस की अगर यस तुम बोलते हो, कंडीशन मैच होती है यहाँ पे,
जो यूजर इनपुट दे रहा है स्कैनर डॉट नेक्स्ट से क्या कर रहे हैं हम, ये जो इनपुट आ रहा है कमांड लाइन से, इनपुट यहाँ ले रहे हैं चॉइस के अंदर, और यहाँ कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं व्हाइल लूप में। जहाँ पे व्हाइल है वहां पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर यूजर बोलता है यस, मीन्स चॉइस इक्वल टू यस अगर है, तो क्या करो, ये वाला विड्रॉल तुम कंप्लीट करके नेक्स्ट अनदर विड्रॉल के लिए उसको अलाउ करो। मीन्स लाइक दिस, अगर तुम्हें पिन कोड चाहिए तो पहले तुम्हें प्लीज इंटर पिन कोड बोल के ऑप्शन आता है, तो कंडीशन पहले चेक किया जाता है क्या? नहीं, कंडीशन पहले चेक नहीं किया जाता है। तुम्हारा कंडीशन तो बाद में चेक किया जाएगा, पिन अगर वैलिड है नहीं है। तो इन दैट केस ऐसे अगर इंस्ट्रक्शन चाहिए तो हम डू वाइल लूप यूज करते हैं। डू वाइल लूप यूज करते हैं। तो डू लूप क्या कर, डू जो है कंडीशन मैच हो या ना हो, पहले फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन होता है ब्लॉक, डू ब्लॉक जो होता है बिफोर वैलिडेटिंग द कंडीशन विल गेट एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। ओके, वंस, एक बार वो कंपल्सरी एग्जीक्यूट हो ही जाता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। this is the actual difference, this is the actual difference between while loop and do while loop। रियल टाइम में जो भी तुम डेवलपमेंट करोगे उस सिनेरियो में तुम्हें ये अप्लाई करना है, while लूप को भी वैसे सिनेरियो में अप्लाई करना है। अगर फॉर लूप है तो मैंने बोल दिया, फॉर लूप है तुम्हारा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन, फिक्स्ड तुम्हें एग्जीक्यूशन करना है, तो उस केस में तुम फिक्स्ड एग्जीक्यूशन करने के लिए मीन्स फिक्स्ड टाइम ऑफ, अगर हमें पर्टिकुलर 10 बार एग्जीक्यूशन करना है, 15 बार, 20 बार, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, फॉर लूप को यूज कर सकते हो, सिंपल फॉर लूप। बट और अगर डायनामिकली अगर तुम्हें कुछ रन टाइम पे तुम्हारे वैल्यू के हिसाब से एग्जीक्यूशन चाहिए तो फॉर ईच लूप है, जैसे कि एरे लिस्ट को मीन्स एरे को या कलेक्शन को एग्जीक्यूट करता है, लाइक दैट। तो ये यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये था हमारा फॉर लूप एंड व्हाइल लूप का कंपैरिजन। तो हमने कल देखा है डू व्हाइल लूप। ओके, अंडरस्टूड। व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप क्या करता है, मीन्स कब हमें यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए, राइट? गॉट इट? गॉट इट गाइस? ऑडिबल? Yes, sir. Yes. ओके, थॉट। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपल, अगर सर क्या हम इस while लूप से या डू while लूप से कोई लिमिट, जब तक है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, एक जो भी फिक्स्ड साइज रहेगी उस फिक्स्ड साइज तक हमारा जो ब्लॉक है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट कर सकते नहीं कर सकते, राइट? सो वी कैन डू दैट, कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमें फॉर लूप सिमिलर जैसे फॉर लूप है वैसे ही चलाना है इसको, तो भी तुम यूज कर सकते हो, बट जैसे डू वाइल या वाइल चलता है वैसे फॉर लूप नहीं चलता है। ओके, सो इन द डू वाइल वी कैन डू द सेम थिंग, जैसे हमारा वाइल लूप चलता है या फिर फॉर लूप चलता है वो सेम सिनेरियो यहाँ पे हम कर सकते हैं। डेमो 2। ओके, डेमो 2। मैं ऑडिबल रूपाली? You there? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. So inside this हम एक लूप लेते हैं, जैसे कि सिंपल डू लूप। अब डू के अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, सिंपल कोई भी चीज अगर हम यहाँ पे रिपीटेड, सपोज फॉर एग्जांपल हम हेलो लाइक दिस प्रिंट कर रहे हैं, कितनी बार करना है मुझे, सपोज 10 बार प्रिंट करना है, तो व्हाइल यहाँ पे मैं क्या कंडीशन दूंगा, व्हाइल
मुझे क्या कंडीशन चाहिए, जो कि मेरा जो 10 मीन्स 10 टाइम मेरा ये डेटा प्रिंट होना चाहिए, स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए 10 टाइम, जैसे हम फॉर लूप में करते थे। कैसे? लाइक फॉर लूप, इसके अंदर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ये क्या है हमारा? ये फॉर लूप है। फॉर लूप में हमें 10 बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। कैसी? ओके, 10 बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है हेलो, राइट। तो ये अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा कमेंट आउट करता हूँ। मैं फिर से क्यों ये सिनेरियो बता रहा हूँ कि तुम्हें एक्चुअल डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि बाबा इससे ये चीज होती है, डू से भी होती है, डू वाइल से भी होती है, और वाइल लूप से भी होती है, फॉर लूप से भी सेम चीज होती है। बट जो मैंने डिफरेंस बताया वो एक्चुअल डिफरेंस है, बट सेम थिंग भी हम कर सकते हैं। देयर इज अ नॉट एनी इश्यू, बट कैसे कर सकते? लेट मी डू दिस। सेम 10 बार मैंने हेलो प्रिंट किया। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। सर सेम चलाओ जैसे हमारा फॉर लूप चलता है। ओके, लेट्स डू वन थिंग। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे मैंने डू के अंदर दिया। मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंडीशन लगाना है। सर यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10 लगा है, ठीक है, यहाँ पे भी लगा देते हैं आई लेस देन 10। सर आई कहाँ पे है? आई तो नहीं है। हम डिक्लेयर करेंगे इंट आई इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा। चलो हो गया, कंडीशन तो मैच हो गया, राइट। यहाँ पे अब इसको क्या करना है, सिंपल प्लस प्लस करना है। प्लस प्लस ये बाहर नहीं करना है। इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हमें अंदर रखना है, मीन्स डू के अंदर स्टेटमेंट के बाद। ओके, डू के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके बाद रखना है, मीन्स आउटसाइड ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हम इसको रन करेंगे सिंपल, तो यू कैन सी सेम आउटपुट। तुम यहाँ पे उसका सेम आउटपुट देख पाओगे। चलो सर तुमने हेलो किया, चलो हेलो की जगह हम उसको आई को प्रिंट कर देते हैं, चलेगा? लेट्स कितना प्रिंट होता है, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। okay, so you can see the result 10. Same result again you can compare with the our for loop as well। तो ये चीज सेम कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हेलो है तो ये इसको कर दो, हेलो की जगह है प्रिंट कर दो, फिर रन करो, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। रिजल्ट तो सेम आ रहा है। सर अगेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, डू व्हाइल लूप? डू एंड डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप में तो समझ में है। अब फॉर लूप में डू व्हाइल लूप में क्या है? अगेन गाइस सेम थिंग हमारी फॉर लूप से भी होती है, बट जो सिनेरियो है फॉर लूप में तुम नहीं दे सकते हो जो हम यहाँ पे दे रहे थे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, यहाँ जो प्रोसेसिंग है, विड्रॉल है, कुछ कंट्रोल करना है, सिस्टम को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है गाइस, ये लूपिंग स्टेटमेंट है, बट इसका मेन जो ये है चैप्टर, हम बोलते हैं इसको कंट्रोलिंग स्टेटमेंट। जो हमारे जो प्रोग्राम के अंदर जो बिजनेस लॉजिक है, जो एग्जीक्यूशन है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये होता है। तो यहाँ पे डू व्हाइल के अंदर हम कंट्रोल करके उसके हिसाब से चला रहे। लेट मी शो इट अगेन, जो तुम्हें फिर से समझ में आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। ये क्या बोल रहा है? प्रोसेसिंग विड्रॉल। ओके, विड्रॉल सक्सेसफुल, तुम्हारा एक विड्रॉल सक्सेसफुल हुआ है। परफॉर्म अनदर ट्रांजेक्शन, यस और नो। अगर तुम यस भेजते हो चलेगा, राइट। थैंक यू फॉर चूजिंग आवर सर्विसेज। तुम्हें ये क्या हुआ? एक्सेप्शन, ये क्या हुआ? तुम्हारा विड्रॉल ये मैच नहीं हुआ, डायरेक्टली बाहर आया, क्योंकि तुमने एस भेजा है कैपिटल और यहाँ पे है स्मॉल, तो इसको
हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं, इक्वल इग्नोर केस होता है, इक्वल इग्नोर केस। अगर केस यहाँ पे तुम्हारा सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव रहता है, तो उसको अगर इग्नोर करना है तुम्हें, तो ये लगा दो, इक्वल इग्नोर केस एक मेथड है। अब मैं सेम यस ऐसे करता हूँ, देखो अगेन पूछ रहा है प्रोसेसिंग विड्रॉल, अगेन तुम्हें चाहिए क्या, नेक्स्ट चाहिए, तो फिर से यस कर दो, राइट, प्रोसेस हो रहा है, नहीं चाहिए नो कर दो, थैंक यू फॉर चूजिंग, एंड फिनिश हो गया तुम्हारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे चॉइस दे रहे हैं हम, तो इस चॉइस, अगर ऐसे चॉइस की सिनेरियो हो या फिर ऐसे कुछ तुम्हें इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उस केस में तुम्हें डू वाइल लगेगा। बट अगर तुम यहाँ ऐसे चाहते हो, फॉर फॉर के अंदर हो सकता है क्या, फॉर के अंदर ऐसे हो सकता है, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट दे दो, सेम थिंग यहाँ का कोड मैं यहाँ उठा के लाता हूँ, ऐसे चलो ठीक है सर, सेम दे दो, यहाँ पे भी हो जाएगा सर, तुम ऐसे बता रहे हो, लेट मी प्रूव, ओके, लेट मी प्रूव दैट, चलो ठीक है, ये मैंने कोड ले लिया, अब ये कोड भी ले लेता हूँ, करेक्ट, ये कोड भी ले लेता हूँ, ये कोड डाल देता हूँ यहाँ पे, राइट, टू, चलो ठीक है, चॉइस, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब सर यहाँ पे तुम क्या करो, जैसे कंडीशन वो चॉइस हो रही है, यहाँ पे चेक करो, होगा, नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है क्या, चॉइस, चॉइस डॉट इक्वल इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस, एंड देन मैं बोल रहा हूँ यस, ठीक है, क्या हो रहा है, हो रहा है क्या, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये तो हमने यहाँ पे No, sir. सेम सेम चीज की है ना गाइस, हमने क्या किया है, चॉइस इक्वल्स इग्नोर केस इतना ही डाला है, इसका कंडीशन हम सेम सिनेरियो यहाँ पे उठा के बस ऐसे हम यहाँ लगा दे रहे हैं, करेक्ट, यहाँ पे लगा दे रहे कंडीशन, ठीक है, चलो हो जाएगा सर, होगा कंडीशन चेक, होगा, क्या बोल रहा है, चॉइस माइट बी नॉट इनिशियलाइज, ठीक है सर, इनिशियलाइज करो, और इसको क्या करो, अब तुम ऐसे इनिशियलाइज करने की जगह यहाँ से उठा दो, यहाँ पे डाल लगा दो, हो गया, हो गया, अब रन करो, अभी एरर तो मेरा रिजॉल्व हुआ है, मुझे चाहिए चॉइस, राइट, मुझे चाहिए चॉइस, क्या हुआ, क्या हुआ, दिख रहा है गाइज, यहाँ से रन करता हूँ फिर से मैं इसको, ठीक है, क्या हुआ, प्रोग्राम को क्या हुआ है, एनीवन कैन टेल मी, रूपाली, Not execute. राहुल, Not execute. नॉट एग्जीक्यूटेड, नॉट एग्जीक्यूटेड इन द सेंस, यहाँ पे हम चॉइस यहाँ चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा चॉइस कहाँ से आ रहा है, पता नहीं, हम पहले नहीं चेक, यहाँ पे रिपीटेडली देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे, राइट, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्री प्रोसेसिंग के लिए, इसको भी करना है, तो लेट मी डू, चलो सर इसको भी कर देते हैं, क्यों नहीं होगा, कर दो, क्यों नहीं होगा, रन करो, अब क्या हुआ, आया, यहाँ पे Executed. आया, अभी आया, अभी मैं यस लगा देता हूँ, क्या आया,
कुछ आया? बस वही आगे बढ़ रहे हैं। आ जाएगा सर, वेट करो, कंडीशन चेक कर रहा है। देखो, जितना इजी हमारे पास डू व्हाइल में जो हमें प्रोसेस लॉजिक जो कंट्रोल करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चीज फॉर लूप में नहीं होती। जो नहीं होती, इसीलिए उसको दिया गया है कि फॉर लूप का अलग काम है, जो डू व्हाइल का अलग काम है, व्हाइल का अलग काम है। दिस इज द प्रूफ। ओके, ये क्या हमारा प्रूफ है कि हम प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। इफ समवन, अगर कोई तुम्हें पूछता है इंटरव्यू में, इन केस, तो ये चीज करके दिखाना। ओके, ही विल डेफिनेटली हैप्पी। जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है तो आगे क्वेश्चन ही नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द करेक्ट डिफरेंस, दिस इज द करेक्ट सिनेरियो फॉर द in between the for loop, do while loop and while loop. Got it? Do you have any question? No, sir. Okay. तो ऐसे ही अगर हमें कुछ फैक्टोरियल फाइंड आउट करने हैं तो डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल है या कोई तुम्हें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ओके, तो इसको अगर तुम्हें चाहिए तो डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट, आई कैन जस्ट run create the one factorial। तो इंटरव्यूअर मोस्ट प्रोबेबली पूछते हैं राइट द फैक्ट और फाइंड आउट द फैक्टोरियल और राइट वन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख दो, प्लीज राइट द फैक्टोरियल प्रोग्राम। सो यू कैन राइट द सिंपल। उस केस में तुम्हें डू वाइल को याद करना है। उस केस में क्या करना है, अगर फैक्टोरियल नंबर अगर पूछता है तो उसको डू वाइल को याद करना है। वो हमें पता है, डू वाइल हमने पढ़ा था। तो फैक्टोरियल नंबर का अगर प्रोग्राम आता है तो हम क्या करेंगे, डू वाइल यूज करेंगे। कैसे सर, डू वाइल कैसे यूज करेंगे और कैसे हम फैक्टोरियल निकालेंगे? सिंपल, सिंपल है। अगर तुम्हें एक नंबर दिया गया, सपोज फॉर एग्जांपल इंट, जो नंबर है n इक्वल टू सपोज चलो मानो 10, 10 जो नंबर है उसका तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है, उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो so in that case first we need to define one factorial। okay, so again int factorial f equal to something like this। okay, one is a factorial of the 10, something like that, or you can take it। then we have to initialize our, हमारा लूप इनिशियलाइज करना है। इंट आई इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करना है। डू, देन डू के अंदर तुम्हें चेक करना है जो भी मल्टीप्लाई होता है करंट वैल्यू से। ओके, तो उसको हमारा जो फैक्टोरियल है उसको लेके जो तुम्हारा जो इवेल्युएशन है, इक्विवेलेंट जो फैक्टोरियल है, उसको कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल का एफ, और एफ को तुम्हें असाइन करना है किसको, उसी से ये करना है, इनटू करना है, मींस एफ इनटू आई, आई जो तुम्हारा इनिशियल वैल्यू आई। देन हमारा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस रहेगा, राइट। देन बाद में हम कंडीशन चेक करेंगे, व्हाइल, व्हाइल अगर मेरा आई इक्वल टू n है, मींस नंबर, तो क्या करो, उस फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करो। ओके, जो फैक्टोरियल ऑफ n का जो फैक्टोरियल है उसको प्रिंट करना है। हम इनिशियली f को हम फैक्टोरियल कंसीडर करेंगे 1 से। जब लॉजिक लगेगा यहां से तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। यू कैन सी द फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल रहेगा, फैक्टोरियल नंबर तुम्हारा जो 10th का फैक्टोरियल है 3628000, राइट, 28800।
So this is the factorial of the something. You see, it would be correct. तो बराबर है, ठीक है। लेट मी चेक। फिफ्थ फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120 आना चाहिए। आ गए, बराबर है, ठीक है। तो इसका भी 15 का देखते हैं। ओके, तो दिस इज द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नंबर बहुत इजी है। अगर कोई पूछता है फैक्टोरियल नंबर क्रिएट करने के मीन्स निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, सो यू कैन सिंपल क्या करना है, तुम्हारे जो फैक्टोरियल जो वैल्यू है, उस वैल्यू को, जो फैक्टोरियल तुम्हारा वेरिएबल है, उसको क्या करना है, तुम्हारा उसी वैल्यू से इस लूप को एग्जीक्यूट कर मीन्स इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस, मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस, क्या है तुम्हारा नेम। और कंडीशन कब तक चलानी है, जब तक तुम्हारा इक्वल टू जो नंबर रहता है, पर्टिकुलर नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है, तब तक उसकी कंडीशन चेक करना, देन उसको बाद में प्रिंट कर देना उस फैक्टोरियल को। ये वाले, ये 1 से स्टार्ट कर लेना कभी भी। अगर सर 0 से स्टार्ट करते तो क्या होता है, लेट्स सी, देखो क्या होता है। अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो क्या आएगा मेरा फैक्टोरियल, 0 से मैं हर बार उसको 0 0 ये कर रहा हूँ, तो कुछ फैक्टोरियल रहेगा नहीं ना। हमें 1 से स्टार्ट करना है, तभी जाके फैक्टोरियल हमारा कैलकुलेट होगा। ओके, तो दिस इज लाइक दिस। अगर तुम्हें इस तरीके के प्रोग्राम्स करने हैं तो यू कैन यूज द डू व्हाइल लूप। सो सिंपल फैक्टोरियल नंबर तुम्हें डू व्हाइल लूप यूज करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि हम लास्ट फॉर ईच जो फॉर लूप लेके हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो स्टार है, स्टार पैटर्न प्रिंट कर रहे थे, तो उस केस में तुम फॉर लूप यूज करो, फॉर के अंदर फॉर। ओके, और देन यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। बट दिस इज द डिफरेंट सिनेरियो, फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल के लिए तुम ये चीज यूज कर सकते हो। गॉट इट? Yes, sir. ओके, सो यू कैन डू एनी अदर एज वेल। जब भी तुम्हें अगर दूसरा कोई चीज चाहिए तो भी तुम इसे यहाँ इम्प्लीमेंट करते हो सकते हो। दिस इज मैं ये सिंपल सिनेरियो बता रहा हूँ गाइस। तो बड़े बड़े सिनेरियोज भी होते हैं जहाँ पे रियल टाइम हम डेवलपमेंट करने जाएंगे, तो वहाँ पे सेम जैसे मैंने बैंकिंग का एग्जांपल दिया, राइट। और अदर एग्जांपल में मैं पहले दे चुका हूँ कंट्रोलिंग स्टेटमेंट में, कि कब कौन से सिनेरियो में हमें यूज करना है। लेकिन फसल अलग अलग, हर एक के अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट कंट्रोलिंग स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट guys। inside the control statement we learn about the like looping statement and decision making statement, like if else ladder, if okay, then switch. Then after that we learn the for loop. Inside the for loop there are different type of for loops: simple for loop, for each loop, and labeled for loop, then while loop, do while loop। so ये अभी तक यहाँ खत्म होता है। बट अभी देखो, इसके अंदर जैसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर हम नेस्टेड इफ देखे थे, राइट, नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे हमें अब देखते हैं आज फॉर लूप का नेस्टेड फॉर लूप, व्हाइल का नेस्टेड व्हाइल लूप, डू व्हाइल का नेस्टेड डू व्हाइल, लाइक दैट। तो होता क्या मीन्स कैसे हम कर सकते हैं उसको। सो लेट्स सी फ्रॉम द व्हाइल फॉर लूप से लेते हैं हम सिंपल। inside the looping statement, do while, where is the word, where is the for loop, if statement हो गया, do while हो गया। ओके, आई थिंक these are the, मैं इसको for loop के अंदर, for loop, let me create the package।
लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर एक फॉर लूप का भी पैकेज बना देता हूँ। फॉर लूप, ओह शिट, सॉरी, माय बैड। पैकेज, okay, so let me delete this, just had created. Let me move this for loop demo inside the for loop package, okay? तो इसके अंदर हम इसको रिफैक्टर कर देते हैं और जाते हैं अभी फॉर लूप के अंदर। व्हाट इज मीन नेस्टेड फॉर लूप? मीन सिंपल है, नेस्टेड इन द सेंस फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप रहेगा हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। क्या? फॉर लूप के अंदर अगर हम दूसरा फॉर लूप यूज करते हैं तो क्या है? नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप कब यूज होता है, कैसे यूज होता है? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम सिनेरियो बताया था कि नेस्टेड फॉर लूप जो है स्ट्रक्चर, लूप के अंदर लूप, अगर हमें कोई डुअल ऑपरेशन करना है, मल्टी डायमेंशनल डेटा को, सच लाइक 2D अरे है, ग्रिड में मैट्रिक्स है, तो अगर उसके जो हर एक कॉलम को हमें प्रिंट करना है, लाइक आउटर लूप, इनर लूप लेकर, लाइक आउटर लूप क्या होता है? एक स्टार्ट होता है, देन इनर लूप होता है और स्टार्ट एंड रन का कंप्लीशन, जो भी कंप्लीशन होता है, लाइक दैट। तो उस केस में हम आउटर लूप, इनर लूप यूज कर सकते हैं। आउटर लूप क्या करता है? मूव करता है सेकंड इटरेशन के लिए। इनर लूप क्या करता है? रन करता है कंप्लीशन के लिए अगेन। तो ये रिपीटेड वर्क होता है, रिपीटेडली वर्क होता है, तो इसीलिए हम उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, और बोलते हैं आउटर और इनर लूप भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, अभी तक हम क्या कर रहे थे? फॉर लूप ले रहे थे फॉर इंट, लाइक इंट, सॉरी, इंट आई इक्वल टू 1, इंट लाइक आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, मैं अभी थोड़ा छोटा ले रहा हूँ, आई प्लस प्लस। चलो, इसके अंदर हम सिंपल अगेन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू 1 से मीन्स लेके 5 तक, हम मीन्स 4 तक, अभी 4 प्रिंट होगी वैल्यू, 1 2 3 4 इक्वल टू देता हूँ यहाँ पे, तो 5 तक होगी। ये वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, ये सिंपल वैल्यू क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। ओके, देन मुझे क्या करना है? मुझे इनर फॉर लूप लेना है, तो मैं इनर फॉर लूप ले रहा हूँ अभी, इंटरनल फॉर लूप। अब मुझे इसको इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू आई, अगर वो है आई प्लस, सॉरी, जे प्लस प्लस, ओके, जे प्लस प्लस, इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करना है, इस स्टेटमेंट। लेट्स रन इट नाउ। सिंपल, मैं एक फॉर लूप ले रहा हूँ, ओके, फॉर लूप के अंदर दूसरा नेस्टेड फॉर लूप ले रहा हूँ, जो इनर फॉर लूप है। वो मेरा इनर फॉर लूप क्या कर रहा है? देखो, मैंने क्या किया, 1 2 2, देन 3 3, मीन्स ये रिपीटेडली इंटरनल क्या कर रहा है? एग्जीक्यूशन कर रहा है। और ये तो हमारा कंप्लीट जो फॉर लूप है चल रहा है 5 टाइम्स, बट इनर फॉर लूप जो है ये चल रहा है हर बार 5 टाइम्स। पहले 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो यहाँ पे आएगा 1 प्रिंट हुआ, 2, again 2 3 3 3, 4 4 4 5 5 5, मीन्स फर्स्ट जो इनिशियली जो उसका जो कंडीशन है, चलो ठीक है सर, ये आई मत दो, मुझे क्या करो, ऐसे सिंपल जैसे ऊपर लगाया 5 तक चलाओ इंटरनल। चलो, अंदर का क्या करेगा लूप? 5 टाइम प्रिंट करेगा वैल्यू, अगेन आगे बढ़ेगा 5 टाइम प्रिंट करेगा, अगेन आगे बढ़ेगा 5 टाइम प्रिंट करेगा। मीन्स देखो, फर्स्ट क्या है? 1 1 1 1 1, ये आ रहा है 5 टाइम्स 1 1 1,
अगेन तुम्हें क्या हो रहा है, 2 2 2 2 2 5 टाइम, अगेन 3 3 3 3 5 टाइम, 4 4 4 4 5 टाइम। जो इंटरनल लूप है वो एक स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, बिकॉज ऑफ दिस। देखो अगर तुम डिबग करोगे तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, यू कैन सी नाउ। ठीक, यू कैन सी कैसे एग्जीक्यूशन होता है। देखो फर्स्ट, सॉरी मैंने डिबगर नहीं लगाया, लेट मी ऐड डिबगर, यहाँ पे भी लगा देता हूँ एंड तक, ठीक है चलेगा। ओके, सो मैं फर्स्ट, मेरा जो कंडीशन है ये वाला, फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन इनिशियली फर्स्ट टाइम आई लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स मेरा 1 है, यहाँ पे ट्रू हो गया ना, कंडीशन 1 है तो ट्रू हो गया, क्योंकि 1 क्या है मेरा 5 से लेस देन है। कंडीशन ट्रू हुआ, गया इंटर हुआ मेरे इनर फॉर लूप के अंदर। इनर फॉर लूप का मेरा जे का वैल्यू है 1 और जे लेस देन 5। ओके, जो लेस देन क्या है मेरा 5। अब यहाँ पे 1 लेस देन 5 करेक्ट है, ट्रू है, एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो हम आई प्रिंट कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो पहले इसकी वैल्यू क्या है 1 ही है, तो अब ये 1 वैल्यू 5 टाइम प्रिंट होगी, 5 टाइम प्रिंट होगी। देखो कैसे, नेक्स्ट प्रिंट करो, आया प्रिंट किया, इफ यू कैन सी कंसोल, कंसोल पे देख रहे हो प्रिंट किया। देखो अगेन मैच हुआ, 1 प्रिंट करेगा। अब क्या हो रहा है, इनर लूप चल रहा है, इनर लूप का जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा वो इनर लूप चलते रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा वो बाहर आएगा, फिर कंडीशन बाहर का तो हमारा फॉल्स नहीं हुआ, करेक्ट। क्यों, क्योंकि अभी जो हमारा आई का वैल्यू है 1 था, अब प्लस प्लस होके क्या होगा 2 हो जाएगा ना। तो उससे पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 टाइम इसने क्या किया, प्रिंट किया 1 को, किसके आई के वैल्यू को। देन अगेन गया फिफ्थ यहाँ पे, फिर अब देखोगे आई की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 2 आई है, क्योंकि सेकंड लूप इंटर हो रहा है। अगेन 2 को तुम बार बार प्रिंट कर लो, 5 बार, जो कंडीशन तुमने दी है। तो क्या होता है कि ऐसे अगर सिनेरियो है जहां पे तुम्हें कुछ इनर वैल्यूज मीन्स मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स है, स्लाइडिंग विंडोज के प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पे लॉजिक तुम्हें अगर बिग लॉजिक है जहाँ पे मैट्रिसेस तुम्हें प्रिंट करना है, कहीं एरे ऑफ डेटा है तुम्हारे पास, मल्टी डायमेंशनल एरे, उस एरे का डेटा तुम्हें इटरेट करना है, प्रिंट करना है, तो उस केस में भी तुम क्या कर सकते हो, इनर जो लाइक इनर लूप है, इनर फॉर लूप है, यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे लेट मी स्टॉप दिस। यहाँ पे अगर तुम आई को प्रिंट कर रहे हो तो आई को करो, अगर तुम्हें 1 2 3 4 5 अगेन अगेन मल्टीपल टाइम चाहिए तो यू कैन यूज जे। अगर जे को प्रिंट करोगे तो ये क्या होगा, स्टॉप, लेट मी रन सिंपल, राइट। ये क्या आ रहा है, अभी देखो, ये देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तुम्हें ये वाला इंटरनल लूप बार बार 5 टाइम्स अटेम्प्ट होगा, इसमें 5 टाइम 5 प्रिंट करेगा, अगेन 5 प्रिंट करेगा, अगेन 5 प्रिंट करेगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ कंडीशन चेक करनी है तो यू कैन यूज, यू कैन ऐड दी इफ कंडीशन इनसाइड दिस फॉर लूप एज वेल। अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है, कुछ कंडीशन चेक करना है, कुछ सिनेरियो चेक करना है, तो वी कैन डू दैट, कैन डू दैट। ओके, सिंपल हम इससे बोलते हैं इनर, इनर एंड आउटर फॉर लूप। तो तुम्हें और भी अगर अंडरस्टैंडिंग करनी है, ओके, तो कर सकते हो इफ यू वांट। लेट मी सिंपल, अगेन मैं उसको और एक डेमो देता हूँ इसका, लेट्स मोर क्लैरिफाई। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन गाइस you can ask me questions after this session, I will explain, okay, no worry।
Let me do this another demo 9. Okay, for loop सिंपल है, एक लूप। अगेन क्या करते हैं हम, सिंपल लूप लेते हैं। ओके, अब array को लेते हैं। int let me define the main method inside the main method I am taking the one array, int array। तो ये सिंगल array है मेरा, बट मुझे अभी, मैं क्या बोल रहा था कि मुझे मैट्रिक्स चाहिए, राइट, मैट्रिक्स। तो ये क्या हो, डबल array मीन्स मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स, मैं इसको मैट्रिक्स बोलता हूँ, मैट्रिक्स, और ये वैल्यू दे रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर। सो 1 2 3 वट एवर जो भी रहेगी 4 5 6 7 8 9 समथिंग लाइक दैट आई हैव एडेड द वैल्यू। तो अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी डू वन थिंग, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ये मैट्रिक्स बना, मीन्स ये तुम्हारा मैट्रिक्स एरे है, डब्ल्यू एरे है। ओके, तो अब इस वैल्यू को अगर 2D एरे है, फॉर एग्जाम्पल हम इस 2D जो 2D एरे हैं उसको इसेंशियली अगर हमें प्रिंट करना है, सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल एलिमेंट विद इन उसके जो कॉलम है उसके अंदर के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर इनर फॉर लूप्स। ओके, मींस नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर जो भी इंट क्या रहेगा, इंट i इक्वल टू 0, हमें पता है एरे 0 से स्टार्ट होता है। i लेस देन जो भी तुम्हारा मैट्रिक्स है उसका लेंथ चेक करना, लेंथ लेस देन लेंथ, देन क्या रहेगा, प्लस प्लस i प्लस प्लस i प्लस प्लस, देन कैन डू, यहाँ पे फिर हम आउटर लूप ले रहे, क्योंकि हम लेंथ चेक कर रहे हैं हमारे एरे की कितनी लेंथ है। ओके, तो उसके साथ हमें अब लेना पड़ेगा एक इनर लूप। इनर लूप क्या करेगा, इटरेट करेगा हर एक कॉलम को जो हमारा करंट रो है उसके साथ। सो इनर लूप रहेगा फॉर अगेन इंट जे इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और जे को क्या करेंगे, चेक करेंगे जो हमारा जे है लेस देन मैट्रिक्स ऑफ आई मीन्स इसमें जो लेंथ आ रही है उसके लेंथ को चेक करेंगे, देन आई जे प्लस प्लस जे प्लस प्लस। अब हमें करना है हर एक इसको एलिमेंट्स को, तो कैसे करेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैट्रिक्स, तुम्हारा आई और जे का जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करना है, दैट्स इट। ओके, हर एक रो के बाद हमें जस्ट क्या करना है, प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जस्ट एम्प्टी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन देना है। स्लैश एन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो ये एरे है, मैट्रिक्स है, तो अगर प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए, तो हम फॉर जो इनर लूप है लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है सिंगल लूप के साथ, नेस्टेड लूप नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। लेट मी रन इट, यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, देन यू कैन सी द रिजल्ट। क्या हुआ, ओके सर प्रॉब्लम है, तुम्हारा डेटा प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे जब प्रिंट कर रहे थे तो उसको एलएन कर दिया, क्योंकि वो प्रिंट एलएन क्या करेगा, एक वैल्यू प्रिंट करके एक अटेम्प्ट में नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। हम तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दे रहे हैं ना, हर एक एलिमेंट के बाद। आ गया, आया नहीं आया डेटा, गॉट इट। यस सर। स्पेस चाहिए, कुछ दिक्कत, ऐड करना है, डेकोरेशन कर दो, और बाकी की चीजें तुम कर सकते हो, डेकोरेशन करना है तो डेकोरेशन कर दो, हर एक एलिमेंट के बाद तुम्हें कुछ ऐसा स्पेस देना है, समथिंग लाइक दैट, कर सकते हो, डू दैट।
तो इस तरह से अगर सर ये हटा दो डायरेक्टली, और ये हटा के तुम डायरेक्ट क्या करो, आई को प्रिंट कर दो ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैट्रिक्स ऑफ आई, क्या मेरा मैट्रिक्स प्रिंट होगा सिंगल फॉर लूप से? विदाउट इनर फॉर लूप होगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। तो उस केस में ऐसे अगर सिनेरियोज हैं जहां पे तुम्हें मैट्रिक्स है या फिर कहीं तुम्हें डेटा रिप्रेजेंट करना है फॉर लाइक दिस स्टार्स प्रिंट करने हैं, डेकोरेशन मीन्स कुछ ऐसा है कि बिग लॉजिक, जहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा बिजनेस लॉजिक डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा है, उसको कुछ अच्छी मीन्स रिप्रेजेंट करना है बड़ा डेटा, तो उस केस में तुम फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, इनर फॉर लूप यूज कर सकते हो। वैसे बोला था रियल टाइम सिनेरियो में अगर हमें लिस्ट टेबल में लिस्ट दिखानी है, यूजर की लिस्ट दिखानी है, राइट, या फिर हमें कार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर अमेजोन पे जाते हैं, अमेजोन के वेबसाइट पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, राइट, वो कैसे हो रहे हैं, हमें फॉर लूप ही तो यूज करना है वहां पे। अगर फॉर लूप नहीं है तो वो कैसे लिस्ट होंगे, डेटाबेस से डेटा कैसे आएगा, कैसे प्रिंट होगा, उसको स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, that is the thing. So this is the most important in our daily development for representing the data or like print the data in the well structured format. ओके जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसको अच्छी तरह से उसको प्रिंट करना, कंट्रोल करना डेटा को, सो दैट थिंग विल हैपन बाय यूजिंग दिस for loop and inner for loop as well. Understood? Yes, sir. सर डू while जो है इसको हम कैसे मीन्स इनर लूप यूज कर सकते हैं, इसको भी इनर लूप ले सकते हैं अगर चाहिए हमें, तो वी कैन डू दैट एज वेल। ओके, एक लूप के अंदर दूसरा लूप तुम यूज कर सकते हो, सेम थिंग होगी, सेम कंडीशन जैसे हमने फॉर लूप लिया। ओके, जैसे हमने फॉर लूप लिया क्या होगा, आउटर लूप इनिशियलाइजेशन करेगा, देन स्टार्ट करेगा फर्स्ट इटरेशन, इनर लूप टेक ओवर करेगा, जो कंडीशन है कोड एग्जीक्यूशन है जैसे यहाँ पे हो रहा है, लेट मी रिवर्ट दिस चेंज। ओके, जो जैसे था वैसे करके देता हूँ। ओके, देन वो रिपीटेशन अगेन, जो आउटर लूप क्या करेगा, परफॉर्म करेगा तुम्हारा नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन। सो दिस इज द एनालॉजी, दिस इज द एनालॉजी जो भी हमें मल्टीपल लेयर, ओके, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स है, तो उस केस में अगर हमें ये देना है मीन्स while loop, do while loop, ओके, इनर लूप यूज करने, तुम सेम यूज कर सकते हो जहां पे तुम्हें कुछ इटरेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल 100 × 100 इटरेशन चाहिए तुम्हें, 10,000 ऑपरेशंस करना है। इफिशियंसी, अगर तुम्हें इनर लूप मल्टीपल वर्क करना है तो स्मॉल इंक्रीज के लिए नहीं, अगर तुम्हें डेटा साइज बड़ा है, लीड करना है, सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस होता है उसका ड्रॉप हो जाता है, अगर तुम बहुत सारे लूप लगाते हो ना उसमें परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप इन द सेंस कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है स्लो हो जाता है, अगर तुम जितना फॉर लूप यूज करोगे वो जितने इनर लूप यूज करेगी क्या होगा कि वो इटरेशन बढ़ेगी ना, जो इटरेशन बढ़ेंगे इन द सेंस तुम्हारा परफॉर्मेंस प्रोग्राम का बढ़ेगा, तो लेटेंसी आएगी। तो इसीलिए हम ज्यादा इनर लूप भी यूज नहीं करते जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां हमें रिक्वायरमेंट है उससे हमें डेटा रिप्रेजेंट ही करना है, उस केस में तुम्हें कंपलसरी इनर लूप यूज करना है। ओके, तो अगेन डू वाइल लूप भी सेम चीज तुम कर सकते हो, या वाइल लूप है अगर वाइल के अंदर वाइल देना है तुम्हें तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देर इज अगेन might be happen the latency। ओके, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप ठीक, बट डू वाइल लूप जो वाइल लूप है तुम इनर लूप अगर दोगे तो हर बार
मल्टीपल, यहाँ पे मैं वाइल लूप दे रहा हूँ, वाइल लूप है ट्रू, ठीक है। जस्ट मैं एक सिंपल दे रहा हूँ तुम्हें, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन की जगह यहाँ पे नहीं देना है, मुझे इनर फॉर वाइल लूप देना है। यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, और यहाँ इनर लूप है मेरा सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन, ये रीच नहीं होगा, फॉल्स करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। 5 लेस देन और ग्रेटर देन 3 है तो एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। रिपीटेड इन्फिनिटी लूप में जाएगा, क्योंकि मेरा जो पहला लूप है मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रू कर रहा हूँ, तो हेलो 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 करके प्रिंट होगा। बट यहाँ पे अगर मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, अगर कंडीशन सेम कंडीशन चेक करता हूँ, 5 ग्रेटर देन 3 है, 5 ग्रेटर देन 3 है, कंडीशन मैच है, क्या होगा, तुम्हारा हेलो प्रिंट होगा। बट ऐसे सिनेरियोज जो है इन्फिनिटी लूप में जाते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा इटरेशन ट्रू ट्रू हो रहा है, राइट। तो वाइल को हमें यहाँ पे ऐसे सिनेरियो में ज़्यादा इनर लूप की जरूरत नहीं, कोई भी लूप है, इनर हो या आउटर लूप, सिंगल लूप भी लेते हो तो इस कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है गाइस, कंडीशन ट्रू हो जाता है। अगर आई ग्रेटर देन 3 है, अगेन तुम्हें इसको क्या करना है, लूप को, लूप के अंदर दूसरा कंडीशन लगाना है, देन उसके बाद मुझे अगर प्लस प्लस करना है तो आई कैन डू दैट, प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कर सकता हूँ, लाइक दिस होगा, रीच होगा। नहीं, क्या हुआ, आई है क्या ग्रेटर देन 3, नहीं है, ठीक है, आई का वैल्यू क्या करो, 8 करो, देन एग्जीक्यूट करो, क्या हो रहा है, फिर से कंडीशन ट्रू हो रहा है, इन्फिनिटी लूप में जाना, सो मस्ट बी ओके, मस्ट बी कंडीशन जो है हमारे स्कोप होना चाहिए उसका, जो मल्टीप्लेयर इफेक्ट्स है आउटर लूप के, तो मल्टीपल nth टाइम तक चलेगा, इनर लूप m टाइप तक चलेगा, जो कोड रहेगा इनसाइड का वो एग्जीक्यूट होगा nth इंटू m, तो उसमें जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो आउटर स्कोप है एक्सेसिबल रहेगा, जो भी इनिशियल इनसाइड द इनर लूप के अंदर है वो डिस्ट्रॉय होगा, स्पेसिफिक इनर इटरेशन के लिए एंड होता है। सो सम रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, हर बार हमें इनर लूप यूज नहीं, आउटर और इनर लूप यूज नहीं करना है हर इसके लिए। अगर कहीं पे तुम्हें रीइनिशियलाइजिंग काउंटर वेरिएबल्स है, कुछ आइडियल टास्क है, रीसेटिंग करना है, क्लियर एक स्पेसिफिक बफर को क्लियर करना है, तो उस केस में यूज होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कॉमन जो पिटफॉल्स है इसका डू वाइल का, वो वाइल का इन्फिनिटी लूप आता है, इन्फिनिटी लूप होता है अगर कोई कंडीशन इनर लूप है का मीट नहीं हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है तो आउटर लूप भी स्टक हो जाता है, ओके। तो हैंग होता है प्रोग्राम हमारा, उन इनर लूप की कंडीशन इवेंचुअली इवेल्युएट करते फॉल्स, okay. So there might be the condition, so I will prove some additional scenarios, कुछ दिखाता हूँ do while के और while के inner के, but these are the specific controlling statements, okay. We will finish in the tomorrow's half session, कल के आधे सेशन के अंदर हम पूरे कंट्रोल स्टेटमेंट फिनिश करते हैं, then we will move ahead for the next chapter. If we